Good morning, dear students. So, this is my second lecture on the chapter Carbon Family. So, let us discuss about fluorocarbons. They are the compounds of carbon and fluorine. जैसे कि नाम में ही है fluoro and carbon. One is a fluorine, another is a carbon. So, they are the analogous to hydrocarbon species. Hydrocarbons में one is a hydrogen and other species is a carbon. ठीक है, but fluorocarbons they are much stronger than your hydrocarbons. The reason being you know that कि fluorine की जो electronegativity है वो बहुत strong है and it can therefore form a very strong bond with carbon in comparison to your hydrogen. तो वहीं पे जैसे कि आप देखते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज अराउंड 414 किलो जूल पर मोल. वहीं पे जो कार्बन और फ्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज 441 किलो जूल पर मोल. ओके, सो इसको कैसे प्रिपेयर किया जाए? ठीक है, वन प्रोसेस इज द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद फ्लोरीन गैस. ठीक है, बट ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, तो इसको अवॉइड किया जाता है. सो देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन इन दिस रिएक्शन. ठीक है, अगर हम डायरेक्ट गैस को कंबाइन करते हैं, so we take an alternative way, that is we can combine the methane gas with fluorine in presence of dark. ठीक है, तो ये भी रिएक्शन आप देखोगे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है, आइदर इन प्रेजेंस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ लाइट or in presence of an inert gas like nitrogen. ठीक है, so you can combine methane or any other similar species, hydrocarbon species with fluorine. ठीक है, in either dark or in presence of inert atmosphere and you can get the fluorocarbons. ठीक है, so one molecule of fluorine has been attached to it. Similarly, अगर मैं concentration fluorine की बढ़ा देता हूँ, so you can add more number of fluorine to the hydrocarbon. The second process is by using inorganic fluorides. ठीक है, either antimony or cobalt fluoride. ठीक है, so you can combine any hydrocarbon species with your inorganic fluorides and you can get the corresponding fluorocarbons. ठीक है, next is the action of hydrofluoric acid on CCl4 or any other smaller fluorocarbon. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि CCl4 में यहाँ पे इनिशियली मेरे पास कोई फ्लोरीन ऐड नहीं है. ठीक है, सो द सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ SbFCl4 एंटीमनी फ्लोरोक्लोराइड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक फ्लोरीन इसमें ऐड हो गया, बट यहीं अगर मैं HF की कंसेंट्रेशन बढ़ाता जाऊंगा सो यू कैन ऐड एन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन द स्पीशीज. ठीक है, अगर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे so you can also get CF3Cl. okay, so why fluorocarbon, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी प्रॉपर्टीज हैं, they are different from the hydrocarbons. First of all, it has a lower boiling point in comparison to their molecular masses. Their densities and fluidities they are higher in comparison to the hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन के कंपैरिजन में देखा जाए तो इनकी जो डेंसिटी है और फ्लूइडिटी है, ठीक है, ये दोनों ही ज़्यादा है, हायर फ्लूइडिटी और हायर डेंसिटी है. सिमिलरली इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं, ठीक है, इट इज़ वेरी लो एंड सरफेस टेंशन इज ऑल्सो वेरी लो. दे आर इनकम्बस्टिबल एंड क्वाइट स्टेबल टू हीट एंड ऑयल and they are inert and resist oxidation. ठीक है, and action of most of the chemical reagents even alkalis at higher temperatures. ठीक है, तो फ्लोरोकार्बन एक तरह से देखा जाए एक तरह की इनर्ट स्पीशीज है. ऐसा क्यों है? जो पहला तो रीजन जैसे हमने अभी बात करी थी कि जो CF बॉन्ड है इट हैज अ वेरी हायर स्ट्रेंथ. ठीक है, तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है. ठीक है, so and the absence of d orbitals in both carbon as well as fluorine, अगर उसके पास d orbitals नहीं है तो वो अकोमोडेट भी नहीं कर सकते फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए वो किसी से रिएक्ट करना भी पसंद नहीं करते. so they are resistant to oxidation since fluorine itself is more powerful oxidizing agent than your oxygen. ठीक है, तो ऑक्सीजन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता. ठीक है, so for these reasons your fluorocarbons they are quite inert and resistant to oxidation. ठीक है, तो कई बार ये पूछा जाता है why fluorocarbon, why they are having such properties. इसके यूजेस की बात करें
So they are widely used in industries due to resistance to oxidation and action of heat and chemical reagents. ठीक है, जैसे कि हम अपने देखते हैं हमारे घरों में जो एयर कंडीशनर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे जो गैस यूज होती है दैट इज अ फ्लोरोकार्बन, दैट इज अ फ्रीऑन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है. So this is being used due to its non-toxic and non-corrosive nature. ठीक है, स्टेबल है और टॉक्सिक नहीं है तो उसको हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज कर सकते हैं एंड इट हैज अ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट. So this gas freon, this is also responsible for the depletion of ozone layer. ठीक है, अगर वो गैस जो है जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में उनमें यूज तो हो रही है, बट अक्सर देखा जाता है कि वो गैस धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में लीक भी हो रही है, बट तो वो हमारे नेचर को भी डिस्ट्रॉय करती है बिकॉज फ्रीऑन इज बीइंग यूज्ड, फ्रीऑन इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर. ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने में फ्रीऑन का भी रोल है. ठीक है, इसीलिए आजकल जो रेफ्रिजरेंट्स आते हैं उसके अंदर आप देखोगे तो वो लिखा होता है कि फ्लोरीन फ्री या क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री. ठीक है, तो वो इसीलिए लिखा होता है कि उसको रिप्लेस किया गया है टू अ डिफरेंट गैस विच इज विच डजंट अफेक्ट द ओजोन लेयर. ठीक है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस है. इनिशियली फ्रीऑन यूज होती थी बट अब धीरे धीरे इसको रिप्लेस किया जा रहा है. And polymerized fluorocarbon, they are being used as waxes, oils, greases, आपकी इंडस्ट्री में हीट ट्रांसफर मीडिया, डाइलेक्ट्रिक मीडिया. ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंट है हीट से तो ये कई बार आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में भी यूज होता है. पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है, तो ये भी आप देखते हैं आप घर के यूटेंसिल्स हैं जो टेफ्लॉन कोटेड होते हैं, प्लास्टिक कोटेड हैं. ठीक है, तो वहाँ सब पे भी हम उसको कोरोजन से बेसिकली बचाने के लिए या फिर हायर टेम्परेचर से अपने यूटेंसिल्स को बचाने के लिए जनरली उनको टेफ्लॉन से कोट कर दिया जाता है. अक्सर आप देखते हैं कि कोई लोग गाड़ियां लेते हैं तो उस पर लिखा होता है कि गाड़ी के ऊपर उसके सरफेस को हम टेफ्लॉन कोट कर देंगे. ठीक है, तो द ओनली रीजन बीइंग कि वो जो टेफ्लॉन है वो आपका हीट और ऑक्सीजन रेजिस्टेंट है, ऑक्सीडाइज भी नहीं होने देगा, तो आपके पार्ट्स को बचा के रख सकता है. And similarly, the next important part in this carbon family is the silicon, or we call it as silicates. ठीक है, सिलिकॉन जो है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, उसमें से एक important part है silicates. Silicates is nothing but the repeated units of SiO4. ठीक है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. तो ये आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर मेनली आपके सिलिकेट मिनरल्स या एल्यूमिनस सिलिकेट क्लेस के फॉर्म में पाया जाता है. जितनी भी मिट्टी आप बाहर देखते हैं तो सब वहाँ पे एल्यूमिनस सिलिकेट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. सो अब जैसे कि मिट्टी को आप पानी में डाल दो दैट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर नथिंग बट सिलिकेट्स, सो दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर. द रीजन बीइंग ड्यू टू द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड. तो सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड उसको हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ही ब्रेक कर सकते हैं. So this SiO4 units, this is generally formed in tetrahedral shape, that is it has a sp3 hybridization. So silicates are classified into different forms, ठीक है, depending upon the number of oxygen it shared with another silicate unit, SiO4 unit. SiO4 में आप देख रहे हैं कि 4 ऑक्सीजन हैं, तो चारों में से वो कितने ऑक्सीजन शेयर करता है या नहीं करता है उसके बेस पे सिलिकेट्स को क्लासिफाई किया गया है. जैसे कि पहला है ऑर्थोसिलिकेट. ऑर्थोसिलिकेट्स इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं करता. ये ऐसा सिलिकेट है जो डिस्क्रीट SiO4 यूनिट है. SiO4 4 माइनस, दैट मीन्स 1 is silicon, 4 oxygen having a negative charge. So they do not share corners with one another. So this one is a orthosilicates. So examples include your zircon, your willemite, phenacite and forstite. ठीक है, ये वो यूनिट्स हैं जहाँ पे आपके सिंपल SiO4 4 माइनस चार्जेस हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द पायरोसिलिकेट्स. पायरोसिलिकेट्स को हम आइलैंड्स भी कहते हैं, आइलैंड सिलिकेट्स. आइलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन शेयर करता है. ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड्स बनाता है. आप ये देख रहे हो ये एक यूनिट है, ये एक जो यूनिट है इसको हम कहते हैं Si2O7 6 माइनस. 2 आर ऑक्सीजन
you have 7 oxygen, 2 are silicon, you have 7 oxygen and you have 6 negative or you can say 6 hydrogen attached to it. ठीक है, तो यहाँ पे जो शेयरिंग है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन की है, ये ध्यान रखना। ऑर्थोसिलिकेट में कोई भी ऑक्सीजन शेयर नहीं किया गया है, पायरोसिलिकेट में 1 ऑक्सीजन आर बीइंग शेयर्ड। अगेन एग्जांपल्स हियर आर phosphotite and hemimorphite. The next one is cyclic silicates. साइक्लिक सिलिकेट्स जहाँ पे नाम में ही आ रहा है कि ये साइकिल फॉर्म करता है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे जो ऑक्सीजन यूनिट्स हैं वो 2 हैं जो शेयर किए जा रहे हैं। आप देखो कि हर एक सिलिकेट यूनिट जो है SiO4 नेगेटिव आयन जो है वो 2 ऑक्सीजन को शेयर कर रहा है। ठीक है, ईच वन इज शेयरिंग 2 oxygen atoms and they are forming a cyclic structure. That is why it is called as cyclic silicates. And the next one is the chain silicates. Chain silicate cyclic silicate में difference क्या है, यहाँ पे भी मेरे पास जो ऑक्सीजन है वो एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन यूज हो रहा है, although this one is sharing 2 oxygen atoms, बट यहाँ पे क्या है, साइक्लिक फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक लीनियर चेन फॉर्मेशन है। और यही चेन फॉर्मेशन मेरी 2 ऑक्सीजन पे भी हो सकती है और तीनों ऑक्सीजन पे भी हो सकती है। सो इट कैन फॉर्म अ लीनियर चेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और इट कैन फॉर्म अ 2 डायमेंशनल टाइप ऑफ शीट। ठीक है, सिमिलरली इट कैन बी कॉल्ड एज पायरोक्सीन्स जहाँ पे लीनियर फॉर्मेशन है, और जहाँ पे डबल चेन सिलिकेट्स हैं यू कैन कॉल इट एज अ एम्फीबोल्स। ठीक है, so the metal ion that holds the parallel chain of both the pyroxenes and amphiboles together, क्योंकि सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से वो चाहे लीनियर चेन में हो या शीट स्ट्रक्चर में हो, वो दोनों ही केस में बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को जोड़ के रख सकता है। ठीक है, सो इफ all the oxygens are being shared except the one at the top, so it can form a sheet silicates. That means अगर मेरे 3 ऑक्सीजन सेंटर्स, 4 में से 3 ऑक्सीजन सेंटर्स अगर शेयर हो रहे हैं, सो इट कैन फॉर्म अ शीट सिलिकेट्स। अब शीट सिलिकेट्स में जो एक्सपेंशन है दैट इज ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस ओनली। ठीक है, so this is due to the sharing of 3 different oxygen atoms such as in case of mica and clay. अब माइका की शीट अगर आपने देखी हो, जो आपके प्रेस हैं, प्रेस में पहले माइका शीट्स यूज होती थी, तो वो बहुत ही आप देखोगे 2D टाइप के मल्टीपल शीट्स हैं एक के ऊपर एक जो चिपके हुए होते हैं। और वहीं पे अगर मेरे चारों ऑक्सीजन शेयर होते हैं तो उस केस में क्या होगा, एक्स वाई एंड जेड तीनों ही एक्सेस में जो ऑक्सीजन है वो शेयर हो रहे हैं, इट कैन फॉर्म अ 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ठीक है, when all the 4 oxygen atoms are being shared, it will form a 3D network. So such type of silicates are called as 3-dimensional silicates or framework silicates. So other than silicates, silicon are being used as silicons. Silicons भी बहुत जगह यूज हो रहा है। One is the polymeric organosilicon compounds, जहाँ पे जो जनरल फॉर्मूला है that is R2SiON। तो यहाँ पे जो रिपीटेड यूनिट है दैट इज योर SiOSi, इसका अल्टरनेट रिपीटिंग यूनिट चलता रहता है। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है R, इट कैन वेरी फ्रॉम एल्काइल टू एल्काइल। ठीक है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं। So they also have a wide variety of commercial uses such as your fluids, elastomers, oils, resins. इनकी जो प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड और एनी अल्काइल क्लोराइड। जनरली हम किसी भी अल्काइल क्लोराइड को आइदर मिथाइल, इथाइल और एनीवन, we can react it with silicon in presence of copper as a catalyst at a temperature of 573 Kelvin. You can get your dichloro dimethyl silane। ठीक है, अब हमने अल्काइल ग्रुप को सिलिकॉन से अटैच कर दिया है। ठीक है, नाउ दिस silane you hydrolyze in presence of HCl, you will get your silanol। ठीक है, जो मेरे क्लोरो ग्रुप हैं these are being replaced with OH groups। So as you can see, 2 क्लोरीन है वो में रिप्लेस हो गए हैं अल्कोहल से, and now this OH group, that is this disilanol, they can further undergo polymerization through the removal of water। तो आप देखोगे कि जितने यूनिट्स हैं मेरे मोनोमेरिक यूनिट्स हैं,
इसमें से H2O मेरा माइनस होता जाता है एंड इट कैन फॉर्म अ लीनियर चेन। तो दिस इज अ सिलिकॉन, ठीक है। और ये n नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स वी कैन हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। जितनी रिपीटिंग यूनिट्स होंगे, जितनी बड़ी होगी, उतनी डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टी होती जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर अ सिलिकॉन। यू कैन ऑल्सो हैव अ क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन। जैसे अगर मेरे पास दो OH यूनिट्स थे पहले और दो अल्काइल यूनिट थे, तो अगर मैं एक अल्काइल यूनिट को हटा के यहाँ पे भी OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो मेरा जो लीनियर चेन की जगह मेरे पास ब्रांच्ड चेन भी आ सकती है। सो यू कैन हैव अ ट्राइक्लोरोसिलेन और यू कैन हैव अ ट्राइसिलेनॉल। इसी को आप फर्दर एक्सपैंड कर सकते हो एंड द पॉलीमराइजेशन this continues along the one axis as well as on the another axis, and you can have a branched silicon. So there are various factors on which this nature of silicon polymer depends. जैसे हमने कहा, पहली चीज क्या होगी, नेचर ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप। जो मेरे पास जो R ग्रुप है, इट कैन बी अल्काइल और एराइल, और अल्काइल में भी इट कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन, ठीक है। सेकेंड इज द लेंथ ऑफ द चेन, कि मेरे पास जो N है, रिपीटिंग यूनिट है, जो मैंने कहा R2SiO4, ठीक है। तो ये कितना रिपीट हो रहा है, क्या वो 10 यूनिट्स रिपीट हुए हैं, क्या 200 हो रहे हैं या 1000 हो रहे हैं, तो लेंथ ऑफ द चेन पे डिपेंड करेगा। एंड थर्ड इज द एक्सटेंट ऑफ क्रॉस लिंकिंग, क्या वो लीनियर है, ठीक है, या फिर वो आपस में भी लिंक्ड है, मल्टीपल है, ठीक है। सो वी कैन कस्टमाइज दिस silicon depending upon the nature of alkyl group, the length of the chain and the extent of cross linking. जो शॉर्ट चेन सिलिकॉन्स हैं दे आर जनरली ऑयली लिक्विड्स, और जो मीडियम चेन सिलिकॉन्स हैं दे आर विस्कस, so they are like grease और jellies। और जो लॉन्गर चेन ग्रुप्स हैं या क्रॉस लिंक ग्रुप्स हैं दे आर रबर लाइक सब्सटेंसेस, ठीक है, वो हार्ड होते जाएंगे। तो जितना मेरा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं या रिपीटेड यूनिट्स बढ़ रहे हैं, उतना ज़्यादा वो ऑयल से ग्रीस और ग्रीस से रबर, उतना वो हार्ड होता जाएगा। So there are various properties of silicon polymers. First, again, like fluorocarbons, they are also heat and water resistant. They can be used as electrical insulators. आप देखते हो कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग के ऊपर कई बार ट्रांसपेरेंट एक ग्लू टाइप ऑफ सब्सटेंस उसके ऊपर ड्रॉप किया जाता है, वो जनरली आपका सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं। दे डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, दे आर स्ट्रॉन्ग वाटर रिपेलेंट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, अगर आप उसके ऊपर सिलिकॉन की कोटिंग कर देते हैं, तो होगा क्या कि आप अगर इसमें गलती से पानी भी गिर जाएगा तो आप उससे बचाव कर सकते हैं। दे आर नॉन स्टिकी एंड शो एंटी फोमिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो स्टिकी नहीं है, तो आप उसको मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में हम इसका मेजर यूज उठा सकते हैं, ठीक है। एंटी फोमिंग प्रॉपर्टीज, जैसे ग्लू है, ग्लू के अंदर फोमिंग प्रॉपर्टीज हैं, अगर उसको रब करें तो वो चिपकने लग जाएगा, बट जनरली सिलिकॉन जो है वो चिपकता नहीं है, ठीक है। इजीली सिर्फ उसको आप मोल्ड कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड के ऊपर कई बार कीबोर्ड के कवर्स आते हैं, दे आर ऑफ सिलिकॉन्स, ठीक है, वो जो उससे स्टिक नहीं करते, अननेसेसरी एक अपना इंप्रेशन नहीं छोड़ते। So there are various uses of silicon polymers. First as a grease, इंडस्ट्रीज में grease, varnishes जो बहुत यूज होते हैं, कई बार लो टेम्परेचर इक्विपमेंट्स हैं उनको बचाने के लिए हम उसको कोट करते हैं, ठीक है। फॉर हायर टेम्परेचर एज वेल, ठीक है, लो में भी है और हाई में भी है। ऑयल बाथ, वैक्यूम पंप्स में उसको यूज किया जाता है। एज अ लुब्रिकेंट बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। आपके गाड़ियों के अंदर सिलिकॉन ऑयल्स का बहुत यूज है। सिलिकॉन रबर आर बीइंग यूज्ड एट लोअर टेम्परेचर्स, ठीक है, क्योंकि वो इजीली ब्रेक नहीं करता, ठीक है। जनरली लोअर टेम्परेचर पर जाके सब्सटेंस हार्ड और ब्रिटल हो जाते हैं, ठीक है, बट सिलिकॉन रबर्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, ये तो जैसे डिस्कस कहा ये है ही। एंड वाटर प्रूफ पेपर, वाटर प्रूफिंग के लिए, ठीक है, आपके रूफ में अगर वाटर प्रूफिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इट कैन हैव वेरियस प्रॉपर्टीज, ठीक है, एडहेसिव, कूलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर, यू कैन फॉर्म वेरियस लीनियर एज वेल एज
शीट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और इसको अगर देखा जाए तो इसको वल्कनाइज्ड भी किया जा सकता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर आपने सुना होगा। तो हम सिलिकॉन पॉलीमर्स के बहुत सारे यूजेस हैं जिसका हम एडवांटेज उठा सकते हैं। ओके, so thank you students, this is all for today and we will see you in the next class.